Good morning, children. How are you all? Welcome to today's episode. Today, we will study another activity of word game. આપ સૌને ખૂબ મજા પડવાની છે. રમત તો બધાને ગમે. આજની આપણી રમત શૈક્ષણિક રમત છે. આપ સૌ તૈયાર છો? લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધી નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી. બાળમિત્રો, ન્યૂઝપેપરમાં તમે વર્ડ ગેમ્સ જોઈ હશે. કોષ્ટકમાં એલ્ફાબેટ્સ આપેલા હોય છે, વર્ણો આપેલા હોય છે અને તેમાંથી આપણે શબ્દો બનાવીને તેની યાદી બનાવીએ છીએ. આવી જ રીતે આપણી નેક્સ્ટ પ્રવૃત્તિમાં એક વર્ડ ગેમ છે, જેમાંથી આપણે મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના નામ શોધવાના છે. કારણ કે આપણી પ્રવૃત્તિ શેના વિશે ચાલી રહી છે? મ્યુઝિક વિશે, મ્યુઝિશિયન્સ વિશે, મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વિશે. તો આપણી જે વર્ડ ગેમ છે એમાં મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના નામ છુપાયેલા છે, તેને આપણે શોધીશું. જેમાં આપણે મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું નામ પણ જાણીશું અને તેમની સ્પેલિંગથી પણ વાકેફ થઈશું અને હું તમને ચિત્રો પણ બતાવીશ. સો આર યુ ઓલ રેડી? લેટ્સ સ્ટાર્ટ. બાળ દોસ્તો, દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં આડી અને ઊભી ચાવી આપેલી હોય છે અને એમાં આપણે શબ્દો શોધીએ છીએ અને નવા શબ્દો જે કંઈ હિન્ટ આપેલી હોય એના ઉપરથી બનાવીએ પણ છીએ. આ ગેમ તો તમે જોઈ જ હશે અને આનાથી તમે વાકેફ પણ છો. આવી જ રીતે આપણી એક્ટિવિટીમાં પણ પેજ નંબર 41 ઉપર આડી અને ઊભી ચાવીમાં ઘણા બધા શબ્દો છુપાયેલા છે. પણ આપણું બિલકુલ ક્લિયર છે કે આપણે આ ટેબલમાંથી મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના નામ શોધવાના છે. અંદર છુપાયેલા છે. કોણ કેટલા શોધી શકશે? ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને જોઈશું. ફાઇન્ડ ધ નેમ્સ ઓફ 5 મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હિડન ઇન ધ ગ્રીડ. અહીંયા ટેબલ માટે ગ્રીડ શબ્દ વપરાયેલો છે. જે ટેબલ આપેલું છે બાળ દોસ્તો એ આ છે. હવે આપ જોઈ શકો છો 9 alphabets are given on both sides, horizontal અને vertical. બંને બાજુ 9 alphabets આપેલા છે. આ તમામ એલ્ફાબેટ્સમાંથી મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું નામ બને તેવા સ્પેલિંગ્સ આપણે શોધીશું. All of you try. After some time, I will give you the first answer. ચલો બાળ દોસ્તો, શોધવાનું છે. Anybody found out? ચાલો પહેલું જોઈએ અને જેને પણ આ જવાબ મળ્યો હોય ઘરે પોતાની જાતને બિરદાવશે. પહેલું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ PIANO, પિયાનો. Repeat with me. PIANO, piano. આપના પાઠ્યપુસ્તકમાં જે આપ સૌ લઈને જ બેઠા હશો તેમાં પેન્સિલથી આ એલ્ફાબેટ્સ ઉપર આપ એક રાઉન્ડ દોરી શકો છો અને રાઉન્ડ દોરીને ત્યાં ખૂણામાં 1 લખી દેજો, એટલે આપને ખ્યાલ આવશે કે આ પહેલું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણે શોધ્યું. ચલો નેક્સ્ટ. કયું નેક્સ્ટ છુપાયેલું છે? ક્યાં છુપાયેલું છે? કયા આલ્ફાબેટ્સને જોડીશું તો નવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મળશે? ગિટાર.
our next musical instrument is guitar. Guitar. गिटार. આને પણ સર્કલ કરીને આપ 2 નંબર ત્યાં લખીને રાખજો. આપ સૌએ ટેક્સ્ટબુકમાં સર્કલ કરવાનું છે બાળ દોસ્તો. સૂચનામાં આપેલું હતું આપણે 5 મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શોધવાના છે. વી હેવ ફાઉન્ડ 2 મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. ચાલો ત્રીજું શોધીએ. ક્યાં છુપાયેલું છે? કોઈએ શોધ્યું છે? યસ. હવે મારી રાહ જુઓ છો? તો ચાલો હું આપને બતાવું છું ત્રીજું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કયું છે. ત્રીજું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે આપણે શોધ્યું છે વાયોલિન. VIOLIN. વાયોલિન. Next, should I show you? Yes. ચાલો હું આપ સૌને બતાવું છું. The fourth musical instrument in this table is tabla. 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 And now the last one. Come on. Find out, children. It is very interesting. ચાલો પોતાના દિમાગને કસરત આપો, શોધો. હું આપ સૌને હમણાં જ બતાવીશ 5th મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કયું છે. ફ્લૂટ. FLUTE. ફ્લૂટ. આપ સૌએ પોતાની ટેક્સ્ટબુકમાં આ 5 મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ જે આપ અત્યારે જોઈ રહ્યા છો તેમાં સર્કલ કરવાનું છે અને તેમાં નંબર્સ પણ 1 to 5 તમારે આપવાનું છે અને તમારે આ 5 મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના નામ પોતાની નોટબુકમાં લખીને અને તેના સ્પેલિંગ્સ પણ યાદ કરવાના રહેશે. Children, we have found 5 musical instruments from the table. Piano, guitar, violin, tabla and flute. Now I will show you the pictures of musical instruments. Let's see the pictures. The first musical instrument we found out was piano. Let's see the picture. This is the picture of piano. The next musical instrument is guitar. Let's see a guitar. This is the picture of guitar. હવે આપણે ત્રીજું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈશું. વાયોલિન. કેવું દેખાય છે વાયોલિન? ચાલો આપણે જોઈએ. This is the image of a violin. Next instrument is tabla. This is the picture of tabla. Tabla is never played alone. We always have 2 drums, small drums in tabla. Next and the last is flute. આ ચિત્ર ફ્લૂટનું છે.
So children, we have studied about musicians and musical instruments. આપણે એક વર્ડ ગેમથી પણ ઘણા બધા મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના નામ શીખી ગયા. જેમ મેં કીધું છે, આ તમામ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના નામ આપ સૌએ નોટબુકમાં લખવાનું છે અને તેના સ્પેલિંગ્સ પણ યાદ કરવાના છે. લેટ્સ લિસન ટુ સમ ગુડ મ્યુઝિકલ સાઉન્ડ્સ. You will enjoy it. હવે નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી માટે આપણે બીજા ક્લાસમાં મળીશું. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો અને સૌ ભણતા રહો. ટાટા. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे और अभी तो आप घर बैठकर ही अपनी पढ़ाई का काम कर रहे हैं. और हमने पिछले एपिसोड में पुनरावर्तन के जरिए भाषा सज्जता के तहत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बारे में जाना था. आज हम इसी प्रकार से भाषा सज्जता से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात शब्दकोश के बारे में यहाँ पर जानने और समझने वाले हैं. वैसे तो शब्दकोश से जुड़े हुए कई सारे अभ्यास आपने किए होंगे और उसका क्रम अब आपको पता भी चल गया है, लेकिन उसके बावजूद शब्दकोश के सही क्रम को जानने के लिए, उसके बावजूद शब्दकोश का सही क्रम किस प्रकार से होता है, इसकी सही जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो आज हम उसके बारे में ही यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं. तो शब्दकोश के क्रम में शब्दों को किस प्रकार से रखा जाता है, उसे अच्छी तरह से समझने के लिए आइए पहले ये क्रम देख लेते हैं कि जिनमें वर्णों को हम किस क्रम में रखते हैं और उनका सही क्रम हमें किस प्रकार से समझना और याद रखना है. तो देखिए ज़रा, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ वर्ण दिखा रहा हूँ और शब्दकोश के क्रम के लिए आपको इसी क्रम को याद रखना है और समझना भी है. तो मेरे साथ पढ़ते भी जाइए. ये पहला जो वर्ण आप देख रहे हैं ये कौन सा है? हाँ, यह है अम. दूसरा है अ, तीसरा है आ, चौथा है ई, पांचवा है ई, छठा है उ, सातवां है उ, आठवां है, हाँ आठवां है री. देखिए रू नहीं, इसका उच्चारण हिंदी में होता है री, है ना. तो आपको भी री बोलना है. तो बोले मेरे साथ एक बार, री. अगला जो वर्ण है ए. अब उसके बाद आएगा ऐ, उसके बाद आएगा ओ और उसके बाद आएगा
अब शब्दकोश का क्रम तय करने के लिए हमें इन स्वरों को इस क्रम में याद रखना आवश्यक है। जब शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखना है तो वर्णमाला का ये क्रम भी हमें जरूर समझना चाहिए। तो जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मेरे साथ और वर्णों को जरूर पढ़ते भी जाइए। पहला वर्ण तो आपको पता है क्या, कौन सा है ये? हाँ, ये है क। उसके बाद आएगा, बोलिए, नहीं, उसके बाद आएगा क्ष। आप कहेंगे तो आप गलत पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि क के तुरंत बाद तो हमेशा ख आता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि जब वर्णमाला लिखते हैं तब क के तुरंत बाद ख आएगा, तो आप सही है। लेकिन जब हमें शब्दकोश का क्रम तय करना है, यानी कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है, तो क के बाद क्ष ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ होगा कि क्ष बना है क और श के मिलन से? यानी कि वैसे तो क्ष संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है, और उसमें जुड़ा हुआ है क और श। देख रहे हैं ना आप? हाँ, इसीलिए क के तुरंत बाद हम शब्दकोश के क्रम में क्ष वाले शब्दों को रखते हैं। अब आएगा ख, है ना? तो आप सही है। ख के बाद ग, उसके बाद ग, उसके बाद च, उसके बाद छ, उसके बाद ज। और अब यहाँ पर भी जैसे क्ष बीच में आता है, इसी प्रकार से हम अंत में एक और वर्ण लिखते हैं, ये है ज्ञ, है ना? यहाँ पर भी आप सोचेंगे कि ये तो अंत में आता है और ये तो ज के तुरंत बाद आप यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये ज्ञ बना है, ज के साथ जुड़ा हुआ है, एक अनुनासिक है इय, और इनके मिलन से हमें एक नया वर्ण मिलता है, ये वर्ण है ज्ञ। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि ज के तुरंत बाद ज्ञ वाले शब्द यहाँ पर शब्दकोश के क्रम के अनुसार हमें रखने हैं। उसके बाद आएगा ज, ट, ठ, ड, ड, अण, त। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि त के तुरंत बाद त्र, और ये तो संयुक्त वर्ण है। अब जरा सोचिए कि जैसे क्ष बना है, जैसे ज्ञ बना है, इसी प्रकार से त के साथ कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ होगा? जरा आप खुद बोल के देख लीजिए, बोलिए, त्र। हाँ, तो यहाँ त के साथ एक और वर्ण का उच्चारण भी हम करते हैं। कौन सा वर्ण है, जरा सोचिए तो। हाँ, त के साथ जुड़ा हुआ है र, और इसी प्रकार से यह भी संयुक्त वर्ण है। यानी कि वर्णमाला में भले हम इसका क्रम अगर नहीं लिखते, लेकिन शब्दकोश के क्रम में अगर हमें शब्दों को रखना है तो त के तुरंत बाद ही त्र वाले शब्द आएंगे। तो यह हमें ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्र के बाद आएगा थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, श। अब सोचिए, ये आ गया श, है ना? तो यहाँ पर भी श के साथ एक और वर्ण जुड़ा है और वह वर्ण है र। तो श्र, श के तुरंत बाद हमें यहाँ पर लिखते हैं कि श के तुरंत बाद ही श्र वाले शब्द आएंगे। आइए, श, स, और अंत में है ह। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने शब्दकोश के क्रम के लिए शब्दों को किस क्रम में रखना चाहिए और कौन से वर्णों को इसलिए हमें ध्यान में रखना है, यानी कि स्वर का कौन सा क्रम हमें ध्यान में रखना है, और उसके अलावा वर्णमाला का जो क्रम है और उसमें भी क्ष, ज्ञ, त्र और श्र कौन से क्रम में हमें रखने हैं, इनकी जानकारी आपने प्राप्त यहाँ पर कर ली है। अब हम इसी से जुड़ा हुआ एक अभ्यास यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ शब्द यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। आपको इन शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में रखना है। तो देखते जाइए और कौन सा शब्द पहले आएगा ये सोचते भी जाइए। चलिए पहले शब्दों को देख लेते हैं। पढ़ते जाइए और हो सके तो अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए। वफादार, नंदन, खत, समाधि, पक्षी, ईदगाह, करुणा, गुजारिश, जूता, मनोरथ, अवनी, हिरन, तितली, दस्तकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न वर्णों से बने हुए कुछ शब्द मैंने आपके सामने रखे।
अब आपको इन शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में रखना है। तो तैयार है आप? और सोचिए ज़रा कि हमने अभी जो तालिका के बारे में जाना है और समझा भी है, तो उसके अनुसार इनमें से अब पहला शब्द कौन सा आएगा? हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पहला जो शब्द आएगा वह है अवनि, क्योंकि शुरुआत अ से होती है और अगर अनुस्वार वाला अ होता तो वह इससे भी पहले आता, लेकिन यहाँ पर अवनि। उसके बाद सोचिए ज़रा दूसरा शब्द कौन सा आएगा? हाँ, ईदगाह, क्योंकि अ के बाद आ, लेकिन आ वाला शब्द यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ई, लेकिन नहीं है, तो ई वाला शब्द यहाँ पर आएगा ईदगाह। उसके बाद भी सोचिए अगर कोई स्वर वाला शब्द यहाँ पर है, अगर है तो उसका क्रम आपको पता है, नहीं है तो शुरू करते हैं क से, और क वाले जो भी यानी कि क से शुरू होने वाले शब्द अगर है तो उसके बाद क्ष, उसके बाद ग, इसी क्रम में हमें इसको जमाते जाना है। तो हाँ, तीसरा शब्द कौन सा आएगा? हाँ, करुणा, क्योंकि श इसकी शुरुआत क से होती है। और चौथा खत, क के बाद आएगा ख। पांचवा हाँ, ख के बाद आएगा ग यानी कि गुजारिश। उसके बाद आएगा हाँ, घ के बाद आएगा ज तो जूता, और उसके बाद आएगा त तो तितली। उसके बाद आएगा कौन सा शब्द आएगा? सोचिए ज़रा। हाँ, त के बाद आएगा द तो दस्तकार। उसके बाद आएगा न तो नंदन, और उसके बाद आएगा पक्षी, है ना, क्योंकि प त थ द द न प, फिर प के बाद आएगा फ, तो फ वाला नहीं है, ब वाला नहीं है, सीधा म वाला है तो मनोरथ, है ना। उसके बाद आएगा व तो वफादार। उसके बाद शब्द आएगा कौन सा आएगा? समाधि। और अंतिम जो शब्द है वह आएगा यहाँ पर हिरण। तो ये तो आपको सरल लगा होगा कि इस प्रकार से हम शब्दों को अच्छी तरह से जमा सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न वर्णों से बने हुए शब्द हैं। और अगर हमें एक ही वर्ण से जुड़े हुए भिन्न भिन्न शब्दों को सही क्रम में जमाना है तो उसके लिए भी हमें वर्णमाला का जो क्रम है उसकी सही जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें स्वर को अच्छी तरीके से याद रखना है। तब हम एक ही वर्ण से बनने वाले कई सारे शब्दों को वो अच्छी तरह से जमा सकते हैं। आइए ऐसा एक और अभ्यास यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए स से शुरू होने वाले सारे शब्द रखे हैं, तो ज़रा पहले शब्दों को पढ़ लेते हैं। सोच, सागर, सिपाही, संगत, सूक्ष्म, सुख, सौगात, सृष्टि, सीमा, सदन, सेवक और सैनिक। देखिए ये सारे शब्द स से बनने वाले, यानी कि इनकी शुरुआत स से हुई है। अब हमें इनको सही क्रम में रखना है, तो सोचिए, आपको उत्तर ये सोचना भी है और अपनी कॉपी में लिखना भी है, और साथ ही साथ मुझे भी बताना है। तो जल्दी से बताइए अब कि भाई पहला शब्द इनमें से कौन सा आएगा, और हमें इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है ना। ये भी आपको बार बार याद रखना है। हाँ, तो सबसे पहला जो शब्द आएगा संगत आएगा, क्योंकि स पर क्या है? अनुस्वार है, यानी कि हिंदी में अनुस्वार वाले जो शब्द हैं वह पहले आएंगे, यानी कि संगत। उसके बाद हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सदन आएगा, क्योंकि ये स से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद आएगा सागर, सम स सा, जैसे कि अम अ आ, और उसके बाद आएगा ई, तो यहाँ पर ई से जुड़ा हुआ या बना हुआ शब्द है सिपाही, है ना। यहाँ पर छोटी ई जुड़ी हुई है, यहाँ पर रस्व ई जुड़ी हुई है, इसीलिए सिपाही। और इसी प्रकार से दीर्घई से दीर्घई जुड़ी हुई है, ऐसा स है तो सीमा, यानी कि सिपाही के बाद आएगा सीमा। और उसके बाद आएगा सुख, है ना। और उसके बाद आएगा सूक्ष्म। तो आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बार बार स्वर वाला जो क्रम था, यानी कि अम अ आ ई, उसी क्रम को याद रखना है और उसी क्रम में इन शब्दों को रखना है, जमाना है। तब हम सरलता से ये काम कर सकते हैं, और आप अभी वही काम हम यहाँ पर सीख रहे हैं, है ना। तो सूक्ष्म के बाद अब बताइए कि भाई अब कौन सा शब्द आएगा। अब फिर से आपको ये वाला क्रम याद रखना है, अम अ आ ई
ई, ऊ, ऊ और उसके बाद मैंने आपको बार बार ये बताया था कि इसका उच्चारण हमें क्या करना है, हाँ री करना है। और यहाँ पर री से जुड़ा हुआ कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा है? हाँ तो है, तो कौन सा है? हाँ ये वाला है सृष्टि। देखिए तो यहाँ पर सुख और सूक्ष्म के बाद आएगा सृष्टि, क्योंकि इसके साथ री जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसका उच्चारण भी करते हैं सृष्टि। तो आपको ये बात भी समझनी है और ध्यान में भी रखनी है। और उसके बाद तो आपको पता है, उसके बाद आएगा सेवक, उसके बाद आएगा सैनिक यानी कि से के बाद सई, और उसके बाद आएगा सोच। और अंतिम तो एक ही शब्द बचा है और आप जानते अंतिम एक ही शब्द बचा है और आप जानते हैं कि ये शब्द तो कहाँ आएगा, तो सोच के बाद आएगा सौगात। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर फिर सभी दे तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर आप ये समझे हैं कि भाई हमें शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अगर रखना है तो कौन सी बातों को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इतनी सी ही बातें हम ध्यान में रखेंगे तो हमें चाहे कितने भी भिन्न भिन्न वर्ण से बने हुए या एक ही वर्ण से बने हुए शब्द दिए जाते हैं तो हम उनको सही क्रम में शब्दकोश के क्रमानुसार रख सकते हैं। और मैं एक और बात भी आपको बताना चाहता हूँ, आपके स्कूल में इसी प्रकार का शब्दकोश भी है, नन्हा कोश भी है, और इसी प्रकार से बड़ा कोश भी आपके स्कूल में होगा। जब आपके स्कूल खुल जाए तब आपको इन शब्दकोश का भी अभ्यास जरूर करना है कि भाई इसी क्रम में इन शब्दों को इसमें रखा गया है या इनका भिन्न क्रम है। और अगर हमें शब्दकोश के जरिए शब्दों को खोजना है, ढूंढना है, तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है यह आपको शब्दकोश देखकर भी पता चल जाएगा। तो ये आपको ज़रूर करना है ताकि आप अच्छी तरीके से शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रख सकें और उसकी सही जानकारी भी आप प्राप्त कर सकें। तो मैं मानता हूँ कि आज आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और अब शब्दकोश का क्रम आपके लिए बहुत ही सरल हो गया होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास खुद करने हैं और शब्दकोश के बारे में आपको जानना भी है। तो मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद।